Hi, student. Hi, student. Good evening, all of you. So today I will be start a short topic of breathing and exchange of gases from class 11 chapter. So let's see. Mainly on that particular topic, I will be focused on the what is breathing, how breathing takes place in our body, and the mechanism of breathing. So this is the topic. Breathing and respiration. So today our main focus will be what is breathing, where it takes place, and how it will be takes place. Difference between the breathing and respiration and the mechanism of breathing. Okay. So move on the first topic. What is breathing? So if we talk about the breathing, it is a physical process by which oxygenated air from the external atmosphere come, or you can say enter, inside the body through the external nostril to the lungs part of the body by inhalation process. And the foul or deoxygenated air released from the lungs to external atmosphere
by the exhalation process. So if we summarize that particular process, breathing is inhalation plus exhalation, or you can say it is as inspiration or expiration. You can also use that particular terminology. So breathing is a physical process by which oxygenated air, which is deposited at higher concentration, it is approximately 21% of oxygen that is accumulated in the atmosphere. क्योंकि हमारे बॉडी पे देखो क्या होता है, हमारे बॉडी पे अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो लेस होता है कंपेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो ऑलमोस्ट 21% होता है, और हमारे बॉडी पे उसके कंपैरिजन पे कम होता है, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी गैसेस पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है वो हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है. सो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू particle or molecule move from a region of higher concentration to the lower concentration. As the amount of concentration of oxygen is higher in the external atmosphere compared to the internal part of the body, that's why oxygen from the external atmosphere should be moved to the inside the body. That does not means every gaseous molecule should be enter towards body, because oxygen is enter to our body because it should be carried by the carrier molecule which is hemoglobin. So ये ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ गैसेस पार्टिकल दैट मीन ऑक्सीजनेटेड एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर के एटमॉस्फेयर से लंग्स के इनर पार्ट तक जाता है, और लंग्स के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड एयर जो स्टोरेड होता है आफ्टर द सेलुलर रेस्पिरेशन, it should be released from the lungs to the external atmosphere through the exhalation process. So we can clearly say that breathing is a combination of inhalation and exhalation process. So we can also told it as a it is a combination of inspiration or expiration also. So I will be figure it and by drawing a figure. Let's see. While breathing is a physical process, what is the difference between the breathing and respiration? Breathing is a physical process because air, that means carbon dioxide, not carbon dioxide, the oxygenated air from the external atmosphere is moved from the external atmosphere to the lungs part, and from the lungs region carbon dioxide is released to the external atmosphere. But there is no utilization of the energy. There is no utilization of the energy for the not there is no utilization of the gaseous particle, not energy, for the productions of the energy. So if we say respiration, it is a combination of breathing. Here I will draw, this is the external atmosphere, or you can see
So let's see. So एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से जो गैसियस पार्टिकल दैट इज ऑक्सीजन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है। इस पार्ट पे होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल। दिस इज द गैलेट और दिस इज द इसोफेगस and that part is the trachea or you can say nasal passage or air passage. Trachea or air pipe. Esophagus or you can say food pipe. This is the epiglottis or this is the glottis or this is the lungs. There was many divisions of the air passage. This is the primary bronchi. सो यहां से लेकर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से लेकर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जब एयर एंटर कर रहा है मतलब ऑक्सीजनेटेड एयर एंटर कर रहा है और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद ये जो पैसेज होता है इसको बोला जाता है नाजल कैविटी एंड आफ्टर इट कमिंग टू और इट रीच टू द इंटरनल नॉस्ट्रिल दैट इज लोकेटेड इनसाइड द body and once it coming to the internal nostril then it pass to the pharynx region. This is the common passage for the air and food. This is the common passage for the air and food. So that part is the pharynx. From pharynx it enter to the glottis of the air pipe. देखो कि यहाँ पे जो ग्लॉटिस होता है एयर पाइप का जो ओपनिंग होता है उसको बोला जाता है ग्लॉटिस। सिमिलरली जो फूड पाइप का ओपनिंग होता है उसको बोला जाता है गैलेट। और एयर पाइप का जो ओपनिंग जो ग्लॉटिस होता है ये कवर्ड होता है ये एपिग्लॉटिस के थ्रू। और यहाँ पे गैलेट पे एज सच कोई ऐसा कवरिंग नहीं होता है। यहाँ पे देखोगे जैसे एक हमको अभी एक गैलेट के बारे में उतना डिटेल्स पढ़ना नहीं है, हम ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम ज्यादातर फोकस करेंगे इस पार्ट पे। तो ये पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नाजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंक्स, देन इट कमिंग टू द ग्लॉटिस के बाद ये इस पर्टिकुलर एरिया पे होता है लैरिंक्स। ये जो रीजन होता है इसका इस पार्ट पे लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स के बाद कंटिन्यूअसली ये ट्रैकियल पैसेज को कवर करते हुए ये एंटर करता है लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर जैसे आता है यहाँ पे बहुत सारी एल्वियोली प्रेजेंस होता है जहाँ पे मेनली गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड एयर होता है वो ब्लड वेसल के थ्रू वो एंटर कर जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन पे। और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद वो चला जाता है हार्ट के पास और फ्रॉम हार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो बॉडी के हर एक सेल के टिश्यू के पास पहुंच जाता है। फिर बॉडी के हर एक सेल के टिश्यू के पास जाने के बाद जैसे वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड स्टॉक, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द फूड स्टॉक द सेल प्रोड्यूस some byproduct which is carbon dioxide and water vapor. The carbon dioxide is a you can say it is a toxic material. In certain concentration our body can tolerate the carbon dioxide level, but when the amount of carbon dioxide is higher then it can be damage, it can disrupt the osmolarity of our blood. So that's why the carbon dioxide should be released from the body
फ्रॉम द, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जैसे वो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद वो हर एक सेल के पास जाएगा, सेल के थ्रू फिर वो वापस आएगा हार्ट के पास। यहाँ पे एक शॉर्ट फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, मतलब लंग्स के बाद एक शॉर्ट फिगर ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेकर लंग्स तक आ गया और लंग्स के बाद ये जा रहा है हार्ट के पास। और फिर एक और वैसे ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यू जस्ट थिंक दिस इज ए लंग्स पार्ट, दिस इज ए हार्ट and that is the body tissue or cell. So जैसे ही देखोगे ये लंग्स के बाद यहाँ पे ब्लड वेसल से होकर ये हार्ट के पास आएगा। जैसे हार्ट के पास आएगा ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद ये जैसे ये वापस हार्ट से लेकर, क्योंकि हर एक बॉडी सेल के पास वो ऑक्सीजन को भेजना है, तो जैसे ये बॉडी टिश्यू के पास जाएगा, ये जिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा इसको बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसमें बहुत सारी आर्टरीज इन्वॉल्व होता है। हम इसके बारे में हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन चैप्टर पे डिटेल्स बताएंगे, बट यहाँ पे हमको जितना चीजें समझना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ये हर एक बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी हो जाएगा। जैसे वो ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा फिर ये बॉडी टिश्यू वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद ये वापस क्या करेगा, इसको यूटिलाइजेशन के बाद देखोगे यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ये वापस भेजेगा हार्ट के पास। जैसे वो हार्ट के पास आएगा, ये भी सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आ रहा है, फिर वापस देखोगे हार्ट से ये जाएगा लंग्स के पास और फिर ये लंग्स के पास जैसे आ जाएगा ये वापस ये पर्टिकुलर पैसेज के थ्रू ये दोबारा बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है, ये ब्रीथिंग प्लस यू कैन से pulmonary utilizations of the ये मैं मिटा देता हूं, वो इजी रहेगा। तो रेस्पिरेशन देखोगे ये यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा प्रोसेस बताया, सारी प्रोसेस को एक साथ बोला जाता है रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग ओनली यहां से लेकर यहां तक का जो मैकेनिज्म होता है उसको बोला जाता है ब्रीथिंग। अब मैं इसको एक डिफरेंस के फॉर्म पे थोड़ा समझा देता हूं। So if you say breathing, it is a physical process. और रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज ए सेलुलर प्रोसेस। यहाँ पे देखोगे देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन, बट इस केस पे देखो रेस्पिरेशन के केस में हियर यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज फाउंड, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन through the body tissue is found, because we need energy। एनर्जी कहां से आएगा, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तब भी जाकर हमारे बॉडी पे एनर्जी आएगा।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन चाहिए होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, क्योंकि हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो मोस्ट ऑफ द हमारे बॉडी पे जो भी बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर आता है, फूड पार्टिकल आता है, उसका जो डिग्रेडेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होगा तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस पे होगा तो वो एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है। तो उस केस में क्या होता है, बॉडी पे उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, और वो सफिशिएंट नहीं होता है बॉडी का हर एक मैकेनिज्म को कंप्लीटली अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो जिसके वजह से हमारे बॉडी पे एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन मैंडेटरी है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे डिफरेंस तो बहुत सारा होता है। ये देखो कि ब्रीथिंग इट इज डिफरेंट, इसका जो मेथड होता है, मैकेनिज्म जो होता है, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। इसका जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग is different in different animal, a different kind of organism we can say. Obviously living organism, but process of respiration is similar. Process of respiration is similar in every organism. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये हर एक सेल के पास, क्योंकि एक कहां पे हो रहा है, इनसाइड द सेल है, ये आउटसाइड द सेल है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक सेल के अंदर जो फूड का जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है वो सिमिलर होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से ये जो ब्रीथिंग होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन को बस एक लोकेशन से लेकर, मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से लेकर लंग्स तक बस एक पैसेज प्रोवाइड किया जाता है कि उस एरिया के थ्रू वो पर्टिकुलर रीजन तक वो पहुंच जाए। तो उसके बाद बाकी जब वो प्रोसेस होगा, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जैसे वो ए के अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर वो एंटर कर जाएगा, तब वहां पे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा होता है, तो मैं उतना डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का, और भी जो बहुत सारे डिफरेंस है। मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ तो मैकेनिज्म पे, तो हम मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान देते हैं। और थोड़ा बहुत मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। क्राइटेरिया और यू कैन से रिक्वायरमेंट for the breathing mechanism. देखो ब्रीथिंग मैकेनिज्म पे मेनली जो चीजें इन्वॉल्व हो रहा है वो गैसेस पार्टिकल है। तो गैसेस पार्टिकल जब भी मूव करेगा वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू मूव करेगा, ऑब्वियसली वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव करेगा, और ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन रीजन पे मूव करेगा। तो इसके लिए देखोगे बॉडी पे कुछ, मतलब इस प्रोसेस के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाकर वो डिफ्यूजन प्रोसेस पॉसिबल होता है। जनरली जिस एरिया पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा वो एरिया मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी देखो सरफेस सॉलिड होगा, जैसे सॉलिड के केस पे देखोगे डिफ्यूजन का देखोगे, हमेशा गैसियस मीडियम पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, और जैसे उसके बाद लिक्विड होता है और उसके बाद सॉलिड होता है। तो सॉलिड के केस पे देखोगे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट पे होता है, सॉलिड के अंदर उतना, मतलब सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड पे उतना खास कुछ होता नहीं। तो इसीलिए देखोगे जहां पे डिफ्यूजन होना चाहिए कम से कम उस एरिया पे मॉइस्ट होना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा वाटरी मीडियम होना चाहिए।
तब जाकर वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म होगा। जो टिश्यू का वहां पे प्रेजेंस होना चाहिए होता है, उसका जो टाइप चाहिए होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। हमारे बॉडी पे जहां जहां देखोगे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, तो जो मेन टिश्यू वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है वो होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तो इन दो क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया यहाँ पे भी और भी होता है। और ब्रीथिंग के केस में जहां जहां होगा वो तो जो एल्वेली होगा उसका मेन पार्ट हो जाएगा एक्सचेंज के लिए, तो एक हो जाएगा। और हमेशा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू ये मीडियम, ठीक है। तो और हाँ, वो जो एरिया होगा वो हाईली वास्कुलर होना चाहिए, हाईली वास्कुलर एरिया होना चाहिए। क्योंकि देखो एरिया यहाँ पे ब्रीथिंग के केस मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि जितना वो हाईली वास्कुलर होगा तो ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन होने के बाद जो भी चीजें गैसेस पार्टिकल ये डिफ्यूज हो रहा है तो उसको ब्लड वेसल के थ्रू क्विकली उसको रिसीव किया जाएगा और बॉडी के बाकी पार्ट पे भेजा जाएगा। तो इसलिए ये तीन जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी डिफ्यूजन प्रोसेस को मतलब बहुत फास्टली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इसके बाद हम जो मेन पार्ट था जो टॉपिक का, ये थोड़ा मेरे को हिंट लेना पड़ा इसलिए क्योंकि हम जब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है तब पता नहीं चलेगा, तो उसका जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो शायद वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाना पड़ा। तो जो मेन फोकस होगा इस लेक्चर पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो स्टार्टिंग पे मैंने बताया था जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। सो हम यहाँ पे इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले हमको लंग्स का थोड़ा मतलब कहाँ पे होता है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, लंग्स पे हो रहा है, तो लंग्स का देखोगी यहाँ पे थोड़ा मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूं। ऐसे देखोगे जो ट्रैकियल का पैसेज होता है वो सी सिपेट हाइलिन कार्टिलेज से ये कवर होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, हम लंग्स का पार्ट और कोई कलर से ले लेता हूँ। थोड़ा लंग्स का भी हमको बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए, तब जाकर ये प्रोसेस थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा देखो, ये जो पार्ट है दिस इज ट्रैकियल पैसेज, और ये तो सी सेपेट हाइलिन कार्टिलेज है जो यहाँ पे नहीं पढ़ना होता है उतना। जो ट्रैकिया को मतलब जो ईयर पाइप होता है उसको एक प्रॉपर पोजीशन पे फिक्स्ड होने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद देखो जैसे ये प्राइमरी ब्रोंकी पे डिवाइडेड हो जाता है लंग्स के अंदर एंटर
पहले तो प्राइमरी ब्रोंकी पे डिवाइडेड हो जाता है, उसके बाद वो लंग्स के अंदर एंटर करता है, फिर प्राइमरी ब्रोंकी सेकेंडरी ब्रोंकी पे डिवाइडेड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी पे डिवाइडेड होता है, फिर ब्रोंकी जाकर ब्रोंकियल पे डिवाइडेड होता है, और भी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, लोबुलर ब्रोंकियल, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, उसका भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, और फिर जाकर वो रेस्पिरेटरी डक्ट, और डक्ट के बाद वो जाता है एल्वियोली के पास, और एल्वियोली पे एक्सचेंज होता है जो, ठीक है, उसके बारे में हम एक और वीडियो लेक्चर लाएंगे। तो मेनली यहाँ पे हम ब्रीथिंग के बारे में मतलब मैकेनिज्म पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम उतना डिटेल्स पे नहीं जाएंगे। तो पहले थोड़ा हमको लंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा हमको रीड आउट कर लेना चाहिए। जो लंग्स का मेम्ब्रेन होता है इसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स इज नोन एज द प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन देखोगी इसका भी दो लेयर होता है, एक होता है आउटर पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनर पार्ट पे देखोगे जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसको बोला जाता है इनर विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में जो खाली एरिया देख पा रहे हो ना, जो गैप होता है इसमें होता है फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है ये एक्चुअल में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उस प्रेशर को झेलने के लिए यहाँ पे कुछ फ्लूइडिक पार्टिकल प्रेजेंस होता है। तो जनरली लंग्स देखोगे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो दो लेयर है, इनर विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है इसको बोला जाएगा प्लूरल फ्लूइड। और इस फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कौन सा फ्रिक्शन, जैसे देखोगे ये लंग्स के अंदर एयर एंटर किया, फिर ये जो एयर होगा ये इंटरनल मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जैसे इंटरनल मेम्ब्रेन पे आएगा वो प्रेशर लेकर जाएगा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन तक। तो ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंस होता है, तो ये बीच में फ्लूइड रखा जाता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है, क्योंकि ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंस है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गाड़ी के केस पे देखोगे जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, तो वहां पे देखोगे वहां पे भी मतलब व्हील का भी जो दो पार्ट है उसका जो जितने भी खाली एरिया होता है वहां पे एयर फील होता है। वो एयर इसलिए फील होता है जब मतलब व्हील जब मूव करता है किसी रोड पे, तो वो जो फ्रिक्शन होता है मिट्टी के साथ, जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब लोअर पार्ट से लेकर अपर पार्ट तक उसका जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी देखोगे, जो इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये भी यहाँ का फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। उसके बाद देखो एक जो पार्ट हो जाएगा ये लेफ्ट लंग हो जाएगा, और ये राइट लंग है। और यहाँ पे देखोगे ये जो बीच का एरिया है ना, इसको बोला जाता है कार्डियक नॉच। और ये कौन सी पार्ट पे प्रेजेंस होता है, ये जनरली देखो लेफ्ट लंग पे होता है। लेफ्ट लंग पे एक नॉच सेपेड एरिया होता है जिसको बोला जाता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच नाम पे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंस होगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे एक्चुअल में हार्ट का प्रेजेंस होता है, जिसलिए ये थोड़ा टिल्टेड होता है। और ये टिल्टेड होने के बाद एज ए नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे देखोगे मोबाइल के केस में, आज के डेट पे देखोगे जो मोबाइल होता है
वहां पे जो सेंटर पार्ट होता है वहां पे ऐसे नॉच होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, किसी के मोबाइल पे देखो कि वी शेपेड नॉच होता है, किसी के मोबाइल पे यू शेपेड नॉच होता है, ऐसे भी नॉच प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे नॉच देखा जाता है जिस पर्टिकुलर एरिया पे जो हार्ट होता है प्रेजेंस होता है। देखो ये हार्ट जनरली हमारे बॉडी पे दो लंग्स के जो बीच का एरिया है ना, सेंट्रल पोजीशन पे ये होता है, प्लेस होता है, और उसके बाद वो लेफ्ट पोजीशन पे थोड़ा टिल्टेड होता है। ये बीच के एरिया पे होता है और लेफ्ट पोजीशन पे थोड़ा टिल्टेड होता है। और ये जो बीच का एरिया है ना, मतलब ये दोनों लंग्स के बीच का जो खाली एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है मीडियस्टिनम। दो लंग्स के बीच में जो खाली एरिया होता है उस गैप को बोला जाता है मीडियस्टिनम। और यहाँ पे लेफ्ट लंग्स के पास जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसको बोला जाता है कार्डियक नॉच। अब यहाँ पे देखोगी, हाँ एक ये चीज मैं बता देता हूँ। जनरली जैसे इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मतलब जैसे लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो उस पर्टिकुलर वर्टिब्रेट के अंदर, तो वहां पे देखोगी जो मोस्ट ऑफ द एयर जो एंटर कर रहा था बॉडी के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल में जो राइट पार्ट है उस पे एंटर कर रहा था। देखो जनरली हम फिगर जब ड्रॉ करते हैं, ये जो साइड हो जाएगा मतलब हमारा जो राइट साइड हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट हो जाएगा। तो ज्यादातर जो एयर आ रहा था ना वो राइट लंग्स के चेम्बर पे एंटर कर रहा था, जिसके वजह से क्या होता है, जो राइट लंग्स होता है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, मतलब राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर इन कंपेयर टू द लेफ्ट लंग्स। और जिसके वजह से जो राइट लंग है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेम्बर भी फॉर्म्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा हो गया, यहाँ का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्चुअल में दो चेम्बर पे डिवाइडेड हो गया। और दो चेम्बर पे डिवाइडेड होने के लिए यहाँ पे कुछ फिशर होता है, मतलब एक सेप्टम जैसा बोल सकते हो, दो पार्टीशन है। और ये जो फिशर है इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स फिशर। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी ट्रांसवर्स फिशर है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिशर देखोगे जिसको बोला जाता है ऑब्लिक फिशर। तो एक तो है ट्रांसवर्स फिशर जो दोनों के केस में कॉमन है, चाहे राइट लंग्स हो लेफ्ट लंग्स हो, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिशर देखोगे जो ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर इसको बोला जाता है, कभी भी कोई सेप्टम ऐसे होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ऐसे होगा तो ट्रांसवर्स होगा, क्या हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, और कभी भी इस टाइप का, क्या इस टाइप का कोई भी कर्वेचर होगा, तो ऐसे कोई मतलब दो पार्ट पे डिवाइडेड होगा, तो इसको बोला जाता है ऑब्लिक। ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, इस टाइप का कभी भी पार्टीशन होगा लॉन्गिट्यूडिनल। इसको हॉरिजॉन्टल क्या ट्रांसफर बोल सकते हो, और इसको ऑब्लिक बोला जाता है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब देखो हमारे बॉडी पे जो लंग्स है उसका भी एक प्रॉपर साइज होगा ना, फिक्स्ड शेप होगा, क्योंकि जैसे प्रॉपर साइज होगा किसी भी चीज का हमारे बॉडी पे, ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में एक पेड़ के जैसा हमारा हाइट इंक्रीज हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे बॉडी पे ग्रोथ तो हो रहा है, तो ग्रोथ के वजह से बॉडी का जो ऑर्गन है उसका भी साइज इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में उसका साइज इतना भी इंक्रीज नहीं होता है कि वहां पे हम जितना चाहेंगे सारी चीजें उसी के अंदर डाल देंगे। तो इसलिए देखोगे जैसे ही वो एयर, मतलब हर एक लंग्स का एक प्रॉपर साइज होने की वजह से वहां पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर का स्टोरेज हो सकता है। अब उससे ज्यादा अमाउंट पे कोई भी चीज स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो साइज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो वो हम कैसे इंक्रीज करेंगे? देखोगे जो मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से वहां पे देखोगे, जैसे मैंने लंग्स का चेम्बर ड्रॉ किया था, लंग्स के चेम्बर के बाहर हमारे बॉडी पे एक केज जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको रिब केज बोला जाता है। ऐसे देखोगे, जैसे मान लो मैं उसी का एक रफ फिगर एक और ड्रॉ करता हूँ। अब इसके जो बाहर होगा ना, मतलब ये ऐसे लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है, और इसके बाहर एक केज जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर देखोगे, मतलब यहाँ, अच्छा इसको रेड कलर पे दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो रीजन होगा ना, ये एक्चुअल में एक केज जैसा स्ट्रक्चर पे एक कवर्ड होता है। एक एप्पल जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो हम यहाँ पे देखोगे, ये जो फिगर है ना, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और इसको मान लो इसका पीछे का साइड है, जो थोड़ा समझा देता हूँ इसलिए अलग कलर पे लिख रहा हूँ। बढ़ा देता हूँ। अब देखो, अच्छा ज़्यादा हेफाजत हो रहा है तो मैं एक कोई दिखा देता हूँ, तो उसको पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद बाकी को कनेक्ट करता हूँ। देखो क्या होता है हमारे बॉडी के देखोगे, ये जो रिब के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, वो चार चीजों को लेकर बनता है हमारे बॉडी पे। देखो सामने के पार्ट पे देखो, जो बोनी लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस रीजन पे देखो, तो यहाँ पे देखोगे ये जो रीजन होता है इसको बोला जाता है थोरासिक रीजन,
और इसके नीचे जस्ट एक ऐसा रीजन आता है, देखो इसके बाद थोड़ा ये ऐसे एक भी शेपेड स्ट्रक्चर ले लेता है, और जहां से ये भी शेपेड स्ट्रक्चर ले रहा है ना, ये इस पर्टिकुलर एरिया से एक्चुअल में एब्डोमेन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो थोरेसिक रीजन देखोगी, जहां जहां देखोगी ये थोड़ा हार्ड पार्ट है, ऐसे यहाँ से टिल्टेड होता है। यहाँ पे देखोगी इस पर्टिकुलर रीजन पे ये सेंट्रल पोजीशन पे, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ का जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे देखो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, और ये बोनी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टर्नम। और हमारे बॉडी का देखो ये जो साइड है हमारे बॉडी का, इस पोजीशन को बोला जाता है वेंट्रल पोजीशन। और ये जो पीछे का पोजीशन देख पा रहे हो, यहाँ पे पीछे का पोजीशन को बोला जाता है डोर्सल पोर्शन, सामने का वेंट्रल, पीछे का डोर्सल। और उसके हिसाब से देखोगी जो हमारे बॉडी का ये जो बोनी पार्ट मैं बोल रहा हूँ, बॉडी के सामने पार्ट पे पोजीशन होता है, मतलब वेंट्रल पोजीशन पे जो बोनी पार्ट होता है, इसको बोला जाता है स्टर्नम। मैं मार्किंग करता हूँ, मैं जो रेड कलर पे मेंशन किया हूँ इसको बोला जाता है स्टर्नम। और उसका पीछे के साइड पे, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टर्नम के जस्ट पीछे, स्टर्नम के बाद बॉडी का पीछे के साइड पे जो डॉर्सल रीजन का पार्ट है, वहां पे होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो डॉर्सल रीजन पे वर्टिब्रल कॉलम, सामने के रीजन पे स्टर्नम, दोनों ही बोनी पार्ट है। और ये दो बोनी पार्ट को कनेक्ट करता है एक और बोनी रीजन, जिसको बोला जाता है रिब्स। तो सामने के साइड पे जो बोनी रीजन है वो है स्टर्नम, पीछे के साइड पे देखोगी, बॉडी के पीछे के साइड पे देखो वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो पार्ट है मतलब लेटरल साइड पे जो चीजें हैं उसको बोला जाता है रिब्स। तो यहाँ पे देखोगी जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसका जो सिचुएशन होगा वो डोर्सल साइड, और रिब्स होगा लेटरल साइड पे, और स्टर्नम होगा वेंट्रल साइड पे। और ये जो रिब्स होता है ये लेटरल साइड पे तो बिलोंग करता है, बट ये देखो डोर्सल और वेंट्रल इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है ये होता है रिब्स के थ्रू, जो लेटरली प्रेजेंस होता है। ये यहां से लेकर मतलब सामने से लेकर ऐसे घूम के, जैसे मान लो ये दो रीजन में मान लो ये ऐसे, मान लो ये स्टर्नम है सामने के पोजीशन पे और ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये इतना डिस्टेंस, ये वेंट्रल पोजीशन पे है और ये डोर्सल पोजीशन पे है। और यहाँ पे और कुछ बेड जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं, जैसे मान लो एक वायर ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये है, इसको थोड़ा रुको, हाँ जैसे मान लो ये ऐसे वेंट्रली था, इसको एक राउंड ले लेता हूँ, और ये डोर्सली है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है, देखो ऐसे। तो ये मान लो ये थोड़ा ऐसे बॉडी का स्ट्रक्चर ये होगा, लेटरल होगा, तो ऐसे ये कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये डोर्सल रीजन के साथ और वेंट्रल रीजन के साथ, दोनों के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। और इस ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसको बोला जा रहा है, जो यहाँ पे मैंने वायर यूज कर रहा हूँ इसको ही बोला जा रहा है रिब्स। तो ये जो रिब्स है, तो रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, और यहाँ पे दो रिब्स के बीच का जो एरिया है ये कनेक्ट होता है एक और मस्कुलर लेयर से, जिसको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल व्हिच कनेक्ट इन बिटवीन द रिब्स, जो दो रिब्स के बीच में कनेक्शन को जोड़ता है, दो रिब के बीच में जो खाली एरिया है इसको जोड़ता है। अब ये किस लिए मैंडेटरी है? क्योंकि ये जो मसल है ना, ये एक्चुअल में एक क्लोज्ड एरिया को प्रोवाइड करता है, और जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, जो रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम और इंटरकोस्टल मसल, इसके वजह से जो यहाँ का जो एरिया होगा ना, जो थोरेसिक रीजन का जो एरिया होगा, एक केज जैसा स्ट्रक्चर, जो पिंजरा जैसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, और जिसके वजह से, और उसी के अंदर ये जो पिंजरा जैसा मैंने बोला था एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और उसी के अंदर प्रेजेंस है लंग्स, उसके अंदर प्रेजेंस है हार्ट। अब ये जो चीजें है ना, ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है, और जिसके वजह से ये अच्छे से इसका जो काम है वो कर सकता है, क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं होता है कि बाहर के कोई रीजन से यहाँ पे कोई भी जो प्रोसेस है इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इसका बाहर का जो प्रोटेक्टेड पार्ट है ना, वो बहुत हार्ड नेचर का होता है,
जिसके वजह से इसका डैमेज होने का चांसेस बहुत कम होता है। अब देखो रिब केज एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करता है जिसके वजह से जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना, एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म होता है। मतलब जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस देखोगे लंग्स का, वो एक इतना पावरफुल इसलिए होता है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड चेंबर प्रोवाइडेड बाय द थोरैसिक रिब केज। अब इसके बाद यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बताता हूँ और इसको मैं साइड पे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो थोड़ा जल्दी देखना है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर मैंने बोलना भूल गया डायफ्राम के बारे में, मैं इस फिगर पे बोल देता हूँ, क्योंकि डायफ्राम भी जो रिब केज का स्ट्रक्चर है उसमें डायफ्राम भी इन्वॉल्व है। एक्चुअल में जो एंड का जो रिब्स होगा वो यहाँ पे स्टार्नम के साथ कनेक्ट नहीं होगा। जब मसल चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे जो रिब्स होता है वो 12 पेयर का होता है, और जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब होता है वो ट्रू रिब होता है। बट उसके बाद जो बाकी रिब्स होता है वो ट्रू रिब नहीं होता है, मतलब 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब, और उसके बाद जो 3 पेयर ऑफ रिब्स होता है वो फॉल्स रिब्स होता है। इसलिए क्योंकि वो जो 3 रिब्स होता है वो एक्चुअल में 7th रिब्स के साथ कनेक्टेड होकर स्टर्नम के साथ कनेक्ट होता है। मतलब पीछे के साइड पे अलग अलग कनेक्ट होता है, मतलब वेंट्रल पोजीशन पे जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ता है वो अलग अलग कनेक्ट होता है, बट सामने के साइड पे जो स्टर्नम के साथ जोड़ता है वो 7th रिब्स के साथ कनेक्ट होकर एक साथ जोड़ता है, इसलिए उसको फॉल्स रिब बोला जाता है। और 11th और जो 12th पेयर का रिब होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ, मतलब डॉर्सल साइड पे कनेक्ट होता है, बट सामने के साइड पे वो जो स्टर्नम होता है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। और यहाँ पे देखोगी यहाँ पे देखकर ऐसे लगेगा कि शायद वो 12 पेयर ऑफ रिब्स तक का जो पूरा रीजन है वो पूरा स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखोगी इसके जस्ट नीचे के साइड पे ऐसे होता है डायफ्राम। और इसका पीछे के साइड पे बोल दिया था यहाँ पे, और मैं ज्यादा ये नहीं कर रहा इसके, मतलब 3D फिगर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और ए हो जाएगा रिब्स, ए स्टर्नम, स्टर्नम और ए वर्टिब्रल कॉलम और ये रिब्स, और रिब्स को जोड़ रहा है इंटरकोस्टल मसल। थोड़ा सा एक रीजन पे मैं दिखा देता हूँ। और नीचे के साइड पे है डायफ्राम। ब्रीथिंग के केस में देखो ये जो मसल मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उस मसल को बोला जाता है रेस्पिरेटरी मसल। ब्रीथिंग के केस में जो मसल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी मसल। और ये दो मसल के वजह से होता है, एक होता है डायफ्राम
और यू कैन से फ्रेनिंग मसल, उसका एक और नाम होता है डायफ्राम मसल और फ्रेनिंग मसल, और एक और होता है इंटरकोस्टल मसल। ये दो मसल को एक साथ बोला जाता है रेस्पिरेटरी मसल, किस लिए? क्योंकि ये रेस्पिरेशन पे इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी मसल। यहाँ पे एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है, इसका भी दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल नॉट इंटरनल, और एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखो एक, नहीं तो मैं फिगर ड्रॉ करके थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मान लो ये रिब्स है और दो रिब्स के बीच में कनेक्ट कर रहा है कौन, ऐसे कुछ, जो रेड कलर का पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं ये है इंटरकोस्टल मसल। इसका मैंने दो लेयर को दिखाने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड ड्रॉ करता हूं। मान लो यहाँ पे कुछ ऑब्लिक शेप है, इसको ऐसे दिखा, मान लो यहाँ से मैंने आधा पार्ट काट दिया, तो जैसे देखोगे मतलब मेम्ब्रेन के केस में जैसे लंग्स का बोला था, दो मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल है ना, एक होता है बाहर के साइड पे जो हमको दिखाई देगा, मतलब उस मसल को बोला जाएगा, मतलब जो डॉर्सल पोजीशन पे होगा, बाहर की तरफ होगा, उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो अंदर की तरफ होगा, देखो अंदर की तरफ होगा तो ये रिब केज है, रिब केज के अंदर की तरफ कौन सा पार्ट है, लंग्स प्रेजेंस है, तो लंग्स के डायरेक्शन पे जो मसल होगा उसको बोला जाएगा, मतलब जो इंटरकोस्टल मसल होगा उसको बोला जाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और बाहर की तरफ जो मसल होगा उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए मैंने दो अलग अलग रीजन पे दिखाया। मान लो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, कि मान लो इसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और जो अंदर का जो रेड कलर का पार्ट है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। तो इंटरकोस्टल मसल का दो पार्ट होता है। और इस केस में देखोगी जनरली जब नॉर्मल ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है, वहां पे मेनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होगा, वहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का उतना रोल नहीं है। उसका काम तब होता है जब फोर्सफुल कोई चीज किया जाता है, मतलब फोर्सफुली हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ एब्डोमिनल मसल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग जो दो मैकेनिज्म है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उस टाइम पे ये सारी जो भी पार्ट अभी तक मैंने बोला था, तो इस पे क्या क्या चेंजेस होता है उसको हमको देखना है। जैसे मान लो मैं इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है वही बोलना है, मतलब वही सुनना है, बोलना नहीं है। इंस्पिरेशन और यू कैन से इनहेलेशन। जैसे देखो जो ऑक्सीनेटेड एयर है कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना, एटमॉस्फेयर से आ रहा है। तो एटमॉस्फेयर से आएगा, थोड़ा पानी पी लेता हूं, रुको। अब देखो बाहर के पार्ट से जैसे वो ऑक्सीनेटेड एयर आ रहा है, ऑब्वियस बात है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर पे उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए? नॉर्मल सी बात है ना कि बाहर के एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन का जैसे कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। और लंग्स के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, इनहेलेशन मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ रहा है, तो लंग्स के अंदर आने के लिए लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए क्या ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियस बात है लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। कम होगा तो तब जाकर तो वो बाहर से बॉडी के अंदर आएगा ना, मतलब लंग्स के अंदर आएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो तो ऐसे भी बाहर कर देगा, अंदर क्यों लेगा? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो वो तो अलाउ ही नहीं करेगा उसके अंदर आने के लिए। तो ऑब्वियस बात है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन pressure inside the lungs
should be less in compared to external atmosphere. क्लियर है? सेकेंड चीज जो होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम और ट्रेनिंग मसल। देखो जनरली क्या होता है, जो डायफ्राम होता है ना, ऐसे डोम शेपेड होता है, इस शेप को डोम शेप बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप का जो शेप होता है ना, इसको बोला जाता है डोम शेप। क्या है, इसको सी शेप भी बोल सकता हूं। और जैसे ये इसका नॉर्मल पोजीशन होता है, मतलब रेस्टिंग कंडीशन पे ऐसे प्रेजेंस होता है। मतलब यहाँ पे देखोगे लंग्स का जो ये जो रीजन है ना, ये देखोगे ऐसे जनरली अपवर्ड पोजीशन पे, रेस्टिंग कंडीशन पे ये ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे इसका नॉर्मल शेप होता है रेस्टिंग कंडीशन पे। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे आता है ना, इसके ऊपर प्रेशर आता है, ये डोम शेप है, ये मान लो ऐसे थोड़ा कर्वेचर होकर था। जैसे प्रेशर आएगा, प्रेशर पुश होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उस टाइम पे ये जो ए शेप होता, मतलब ये जो सी शेप में होता है, तो उस टाइम पे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है। ये होता है इसका रेस्टिंग कंडीशन पे, और ये होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे ऐसा शेप पे आ जाता है, कौन सा पार्ट मैं बता रहा हूं, डायफ्राम का। और रेस्टिंग कंडीशन पे ऐसा पोजीशन पे होता है। तो डायफ्राम, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे मान लो लंग्स के अंदर एयर आ रहा है, तो पहले वो कहां पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, पहले इंटरनल मेम्ब्रेन पे, मतलब जो विसरल मेम्ब्रेन है, विसरल मेम्ब्रेन के बाद जाएगा वो जो प्लूरल फ्लूइड था उसके ऊपर जाएगा, फिर वो जाएगा उसका बाहर के पार्ट, मतलब पैराइटल मेम्ब्रेन। पैराइटल मेम्ब्रेन के बाद वो जो प्रेशर होगा वो एक्चुअल में बाहर की तरफ जाएगा, मतलब रिब केज के पास जाएगा। तो रिब केज के पास आने के टाइम पे देखोगे, हमेशा देखो जो भी चीजें बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है पहले वो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से भी देखेंगे तो जो भी चीजें आता है वो एक्चुअल में पहले धरती के नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा नीचे की तरफ पहले फोर्स अप्लाई करेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो साइड का जो रीजन है वहां पे भी वो प्रेशर डालना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये एयर एंटर कर रहा है लंग्स के अंदर, तो तुरंत क्या करेगा, फर्स्ट जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा, मतलब जिसके ऊपर फर्स्ट प्रेशर अप्लाई होगा, वो डायफ्राम पे होगा। जैसे डायफ्राम पे प्रेशर अप्लाई होगा, डायफ्राम ये सी शेपेड स्ट्रक्चर से स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम और फ्रेनिंग मसल, इट कन्वर्टेड फ्रॉम डोम शेप टू स्ट्रेट लाइन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अकेला एक्चुअल में लंग्स का जो एक्सपेंशन है ना, उस एक्सपेंशन का जो 75% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अकेला डायफ्राम के थ्रू होता है। मतलब लंग्स के अंदर जैसे वो एयर एंटर करता है, उसका जो 75% लंग्स रीजन का जो एक्सटेंशन है वो होता है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। अकेला डायफ्राम प्रोवाइड कर देता है 75%, और रिमेनिंग जो 25% होता है वो प्रोवाइड करता है स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और इंटरकोस्टल मसल और रिब्स मिला के, चारों मिला के प्रोवाइड करता है। और डायफ्राम अकेला 75% प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अगले जो पॉइंट है वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मेरे को इरेज करके अगले पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट हो गया, एक हो गया इंटरनल, मतलब इनसाइड द लंग्स जो प्रेशर होगा वो लेस होगा कंपेयर टू द बाहर का एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा, डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्रेनिंग मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इंस्पिरेशन का जो थर्ड पॉइंट है वो बता रहा हूं, मतलब इनहेलेशन प्रोसेस का जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसका जो मैकेनिज्म है ना, जैसे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखोगे यहाँ पे दो तीन मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। ये देखो, ये जो है स्टार्नम का ये है एंटीरियर पोजीशन, और ये जो नीचे का पार्ट है ये है इसका पोस्टीरियर पोजीशन। सिमिलरली इसके पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी उसका ये हो जाएगा एंटीरियर पोजीशन, और नीचे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम का एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा उसका पोस्टीरियर पोजीशन। तो जैसे देखो ये एक जो मार्कर है इसका भी ये हो जाएगा एंटीरियर पोर्शन, और ये जो नीचे का पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पोस्टीरियर पोर्शन। जैसे ही देखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो दो रिब के बीच में कनेक्टेड है वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये जो नॉर्मल शेप देख रहे हो अभी, जैसे मान लो ये सीधा है, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा ना, मतलब इंटरकोस्टल मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो रिब्स ऐसे देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, ये धीरे धीरे ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसलिए देखो, पहले तुम खुद भी फील कर सकते हो, एक डीप ब्रेथ लो। देखो हम जैसे ब्रेथ लेते हैं, मैं ब्रेथ लेकर दिखा रहा हूं। जैसे मैं ब्रेथ लिया, देखो मेरा बॉडी का जो ये जो पार्ट है ना, मतलब थोरेसिक का जो पार्ट है, थोड़ा ऐसे फील हो रहा है, ये अपवर्ड पोजीशन पे जा रहा है। एक और बार ब्रेथ लो। तो ब्रीथ लेने के टाइम पे देखोगे हमेशा हर बात, मतलब हर वक्त देखोगे यहाँ पे जो ये जो पार्ट है, मतलब जो रीप है, जैसे ये नॉर्मल शेप पे मान लो ऐसे होता है, तो ऐसे मतलब नॉर्मल शेप पे ऐसे होता है। जैसे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली देखोगे ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये अपवर्ड पोजीशन पे लिफ्टेड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दो तीन चीजें जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फर्स्ट होगा यहाँ इसके वजह से, मतलब वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, should be lifted or extend anterior posterior direction। तो जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऐसे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे मान लो मेम्ब्रेन है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये ऐसे नॉर्मल था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खींच लेंगे तो अब क्या होगा, इसको क्लोज खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पार्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन पे लिफ्टेड हो जाएगा। जैसे ये लिफ्टेड होगा देखोगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो रिब्स और सामने की तरफ जो स्टर्नम और पीछे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि रिब्स को मैं ऐसे ऊपर खींच रहा हूँ, ऊपर खींचूंगा तो क्या होगा, रिब्स किसके साथ कनेक्टेड है, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ, सामने की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वो क्या करेगा, वो जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम है इसको भी आगे की तरफ लेकर जाएगा, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन पे देखोगे इसका भी इंक्रीज होगा साइज पे। तो जैसे देखोगे एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन पे वर्टिब्रल कॉलम, और साथ साथ किसका इंक्रीज होगा साइज पे, स्टर्नम। कौन सी डायरेक्शन पे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन पे। साथ साथ एक और चीज नोटिस करोगे, तो इसको थोड़ा मिटा के इस एरिया पे लिखता हूं। Ribs extend in dorsoventral axis and outwardly। इसका मतलब देखो, देखो रिब्स कहां पे कनेक्टेड है, लेटरली कनेक्टेड है ना, साइडवाइज। तो ये जो कनेक्टेड है, क्योंकि इस रीजन वेंट्रल है, ये रीजन डॉर्सल है, तो क्या होगा,
तो ये डॉर्सोवेंट्रल रीजन पे ऐसे एक्सटेंड हो रहा है ना, ये था ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, कौन कौन, स्टारनम और वर्टिब्रल कॉलम। और रिब्स क्या होगा, दो रीजन पे, सामने के साइड पे स्टारनम के साथ और पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। तो मतलब इसका जो एक्सटेंशन है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे होगा। जैसे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे हो रहा है, ब्रीथिंग लेने के टाइम पे देखो, एक बार फील करो, देखो जैसे मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, बॉडी का जो नॉर्मल शेप है देखो ऐसे नीचे की तरफ होता है, और ब्रीथिंग लेने के साथ साथ ये देखो थोड़ा इस पर्टिकुलर एरिया का देखो थोड़ा सामने की तरफ, जो चेस्ट एरिया है सामने की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये आउटवर्डली एक्सटेंड हो रहा है, जो ये जो पार्ट है मतलब रिब्स जो है ये आउटवर्डली एक्सटेंड हो रहा है। तो आउटवर्डली जो रिब्स होगा ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे तो एक्सटेंड हो रहा है, साथ साथ ये आउटवर्डली जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जो चीज है ये इनहेलेशन के टाइम पे ये पर्टिकुलर तीन मैकेनिज्म देखा जाता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्रोसेस के वजह से यहाँ पे 100% जो लंग्स रीजन का एक्सटेंशन होता है वो होता है। 75% अकेला प्रोवाइड करता है डायफ्राम, और बाकी 25% स्टारनम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल, ये चारों मिला के प्रोवाइड करता है 25% इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। अब इसके बाद देखो इसका जो ऑपोजिट प्रोसेस होगा एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन के टाइम पे क्या होगा, इनहेलेशन हो गया, अब हम देखते हैं एक्सेलेशन। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, जो इनहेलेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि बाहर से हमको सांस लेना ही पड़ता है, बट जो एक्सेलेशन का प्रोसेस होगा ना ये पैसिवली होगा। यहाँ पे एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि, क्योंकि एक बार जब सांस लोगी तो ऑटोमेटिकली देखो उसके बाद देखो सांस लेने के टाइम पे हमको लग रहा है कि बाहर से कुछ चीजें ले रहा हूँ, बट छोड़ने के टाइम पे देखो ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है कि मैं कुछ चीजें बाहर छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए लेने का जो प्रोसेस है वो एक्टिव है, बट छोड़ने का जो प्रोसेस है वो पैसिव हो जाएगा। तो एक्सेलेशन इज द पैसिव प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीजें आप ये हो रहा था ना उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट जो होगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स ऑब्वियसली हायर होगा, इनसाइड द लंग्स शुड बी हायर इन कंपेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तब तो जाकर ये चीजें बाहर जाएगा। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन पे यहाँ पे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तब जाकर, क्योंकि लंग्स ऐसे अब क्या करेगा, एयर आ रहा था एक्सटेंड हो रहा था, एक बैलून जैसे स्ट्रक्चर मान लो लंग्स को। अब जैसे बैलून से हमको एयर बाहर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे फिर वापस उसी स्टेज पे आएगा जो नॉर्मल स्टेज पे था। एक बैलून मान लो नॉर्मल कंडीशन पे पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज जैसा लगता है, उसको हवा भरेंगे तो फूल जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो नॉर्मल शेप पे आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज होता है। तो यहाँ पे देखोगे प्रेशर उस टाइम पे लंग्स के अंदर हाई होना चाहिए तब जाकर वो बाहर की तरफ वो ऑक्सीजन नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड एयर होता है वो बाहर जाएगा, फाउल एयर तब बाहर जाएगा। तो लंग्स के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए। सेकंड चीज मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्चुअल में क्या होगा, बाहर की तरफ मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का जिस रीजन से ये जो बाहर जा रहा है ना, यहाँ पे इसका प्रेशर मतलब बाहर जाने के टाइम पे इसका प्रेशर कम होता है और अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्योंकि हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक तो जो गैसेस पार्टिकल है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा डायफ्राम रिलैक्स होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है वो होता है स्ट्रेट लाइन और रिलैक्स स्टेज होता है डोम से फिर। तो डायफ्राम रिलैक्स मतलब डायफ्राम मसल जो होगा वो रिलैक्स होगा, तो डायफ्राम क्या होगा, वापस डोम से पे आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। साथ साथ क्या होगा, देखो अकेला डायफ्राम 75% कंट्रीब्यूट किया था, तो ये जैसे हो जाएगा ऑलमोस्ट मान लो
75% कम हो ही गया। उसके बाद क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये अब क्या होगा, इसको भी रिलैक्स होना पड़ेगा। इंटरकोस्टल मसल, इसको भी क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। ये रिलैक्स होगा तो आप देखो इसके साथ साथ कौन सा मैकेनिज्म बताया था, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ये तीनों का प्रोसेस इसके साथ रिलेटेड है। मतलब वापस जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन पे इंक्रीज हुआ था, अब ये वापस एक दूसरे के क्लोज आएगा। मतलब एक दूसरे के मतलब स्टर्नम उसका प्रीवियस शेप फॉलो करेगा, प्रीवियस शेप पे आ जाएगा। जो पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम था वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि जैसे ये रिलैक्स हो रहा है तो उसको वापस ऐसे बोला था ना, ऐसे खींच रहा है, तो जैसे ये फिर से रिलैक्स हो रहा है मतलब क्या होगा, ये ऐसे नीचे आएगा। ये जैसे रिब्स जैसे ही नीचे आएगा, साथ साथ जो स्टर्नम है वो भी नीचे की तरफ आएगा। पीछे के साइड पे जो डॉर्सल साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। बट इनका एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि बहुत हद तक होता है, क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर है ना, तो बोनी स्ट्रक्चर का कभी भी उतना भी एक्सटेंशन नहीं होता है। हम जितना सोच रहे हैं कि जो लंग्स का जो इनर मेम्ब्रेनस पार्ट पे जितना होगा, ये बोनी रीजन पे उतना नहीं होगा, फिर भी ये 25% जो लंग्स का सरफेस एरिया का जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड करता है, ये तीनों मिलाकर। तो एक्सेलेरेशन के टाइम पे ये तीन चीज होगा, इनसाइड द लंग्स ज्यादा प्रेशर होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगा। तो जिसके वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे बॉडी पे जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है, इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन, ऐसे ही हमारे बॉडी पे परफॉर्म होता है और ये सारी चीज़ों का चेंजेस देखा जाता है। और मैंने पहले ही बोल दिया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगा था तब जाकर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और साथ साथ एब्डोमिनल मसल का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो चलो बाय, गुड लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।